Good morning, everyone. So we'll start with the histology of alimentary canal. Yesterday's note was clear. That the note that I've given. Okay. So we'll start with the histology of alimentary canal. Now, when we talk of the histology, what do you mean by histology? That is study of the tissue. Now, alimentary canal, from the starting till its end, that is from the mouth till your anus, every organ will be having certain kind of tissue or which is involved in it. So basically, when we talk of the histology of the total alimentary canal of every organ, there is 4 layers. There are 4 layers normally which is present in it. The absolute outer layer is known as peritoneum or serosa. And this layer is made up of flat single layered stratified squamous cells. It is basically made up of stratified squamous cells, flat cells, that means flat cells, and is single layered also. Now, the next layer, the second layer, is known as the muscularis. Now, this muscularis normally has 2 layers also. An outer layer, which is longitudinal, and the inner layer, which is circular. But there is one exception in it. The exception is, in all the visceral organs that we talk about of digestive system, apart from stomach, everyone is having muscularis composed of 2 layers. But in stomach, the muscularis is composed of 3 layers. The exception is stomach has 3 muscularis layers. This is the only exception. And these 3 layers are longitudinal layer, that is the outer one, then oblique layer, the middle one, and the inner circular one. So extra oblique layer is present in case of stomach. After the muscularis, the next layer which is there is known as submucosa. Now, for submucosa, it is basically made up of areolar tissue, which is not a dense connective tissue. It is very loose connective tissue. Areolar tissue, this is loose connective tissue. And absolute innermost layer is known as mucosa. It is known as mucosa. Alright, mucosa will be having 3 layers for itself. What are the 3 layers of the mucosa? The first layer is known as muscularis mucosa. The second layer is known as lamina propria, and this lamina propria is made up of reticular tissue. Reticular tissue means circular tissue. Reticular tissue. You have seen in pythons, we have one kind of a python which is known as a reticulated python. It has got circles of this kind of circles all over its skin. So it's circular in nature. And the third layer is known as the epithelial mucosa or the epithelial layer, and it contains glands.
So from outside to inside, we have peritoneum or serosa. The next layer, the second layer is known as the muscularis. The third layer is known as the submucosa, and the innermost layer is known as the mucosa. Okay? Is there any problem with it right now? Clear now? So we will try to draw a basic diagram of how it should be looking like, how it actually looks like when we go for the cross section of this histology of the alimentary canal. You'll see the diagrammatic view of it. Now, the first layer that I talked about, what was that? What was that layer? Flat cells and single layer. What is that layer called? Tell me. What was this layer called? What is the outermost layer called in the histology of the alimentary canal? Peritoneum. Peritoneum or the serosa, right? The next layer is known as the muscularis, and in muscularis normally we have two layers, the longitudinal layer and the circular layer, right? This is the muscularis. This is the muscularis. This is the longitudinal layer. This is the circular layer. The next layer or the third layer is known as what? What is this layer called? Mucosa. Submucosa, and it is made up of areolar tissue, loose connective tissue. You can see the connective tissue is dispersed not compactly, but it is loosely arranged. This is submucosa. And the last layer is known as the mucosa, and it has got three layers, right? The first layer of the mucosa is known as what? Muscularis mucosa, right? This is the muscularis mucosa. Then the next layer is known as the lamina propria, which is made up of reticular tissue, like the circular ones. And the last layer is known as the epithelial, which contains the glands. So this whole layer is known as the mucosa. And in mucosa, this is the muscularis. This is the lamina propria. And this is epithelial layer. Apart from this, you should also need to know one very important aspect. In between the longitudinal and circular layer of the muscularis, there is a plexus of nerve, parasympathetic nerve in fact. In between these longitudinal and circular layer of the muscularis, there is a plexus of nerve. This is known as Orbiac plexus. So what is Orbiac plexus? What can we write regarding Orbiac plexus? Tell me. It's a parasympathetic nerve. Nerves between the longitudinal and circular layer. For parasympathetic nerve between longitudinal and circular layer of muscularis, right? What does it do?
What does it do? This Alveus plexus basically goes for a very interesting function. That function is rhythmic contraction. The function is what? Rhythmic contraction. And this contraction process is taking place where? During peristaltic movement. During peristaltic movement. All right. Esophagus, we know in esophagus there is peristaltic movement, right? The food does not drop down from the esophagus directly to the stomach, but it comes down slowly, layer by layer, right? Yes. Yeah. So it is actually going for the peristaltic movement. Okay. So it goes for the rhythmic contraction. One part of the esophagus will be contracted, then the next part of the esophagus is going to be contracted. In this way, the food descends down from the esophagus to the stomach. Now we go for the histology of the first part of the alimentary canal, that is the esophagus. Is there any problem over here? Okay. So so we'll go for the histology of the esophagus. Now when we talk about the esophagus, if we draw the diagram properly for the esophagus, how does it look like? This is the stomach. So this is the esophagus. This is the opening of the esophagus, we all know. It is known as what? Gullet, right? And this is the body of the esophagus. Now this body of the esophagus will be having what? Esophageal rugae, right? It contains what? Esophageal rugae, right? And the total length of the esophagus from top to bottom till its extension, its occurrence is where? If you find this occurrence over the esophagus, what is present? Pharynx, right now? Do you remember? Yes. If you can remember the structure, I have drawn one structure over here. Whenever I was drawing this esophagus downwards, I was drawing over here, say there is pharynx on the top of it, right? And at the base it is what? Stomach, right? So what is the extension of the esophagus? From the base of pharynx till stomach. Can we say like that? From the base of the pharynx till stomach. Can we write it? Yes. You didn't have your breakfast. Can't you repark it? So the extension of the esophagus is what? From base of pharynx till stomach. Now we need to understand one more very important thing over here. What are the 4 layers of the esophagus? How many layers would be there in esophagus? 4 layers. 4. What are the 4 layers? Serosa, muscularis, submucosa, and mucosa. This thing will be present in these is the 4 layers which actually it has over there. Okay. Now another thing. Now over here, can you see this is a sphincter which is known by what? Cardiac sphincter, right? Or esophageal gastric sphincter. This is known as what? Cardiac sphincter or esophageal
gastric sphincter. Now, if you draw a cross section of this thing, how does it look like? It contains some circular muscle like this. So what is actually it is doing? Circular muscles. These are circular muscle which guards the esophagus, right? Guarding the lower opening of esophagus. Guarding the lower opening of esophagus. Okay. Next part what we are going to accommodate ourselves is how many parts this esophagus is divided into. It is divided into upper, middle and lower part. Upper 1/3, middle 1/3 and lower 1/3. Now of this, in the upper 1/3, it has got a muscle which is known as skeletal muscle. Now tell me, skeletal muscle is voluntary or involuntary? Voluntary. Voluntary. It is voluntary. Now the middle 1/3 consists of skeletal muscle and smooth muscle. Tell me, smooth muscle is voluntary or involuntary? Involuntary. Voluntary. Lower 1/3 consists of only smooth muscle. Okay, that is also involuntary. Now if I give you one interesting condition, the condition is vomiting, or we also call it as emesis. ठीक है, अगर कंडीशन वॉमिटिंग या इमेसिस हो, और मेरा क्वेश्चन ये है विच मसल of esophagus involved in vomiting. क्या आंसर होगा और क्यों होगा? Anyone can participate and tell me. I do not have all day to listen to your deafness and dumbness. Repark it. Upper 1/3 and middle 1/3 muscles. Which one? Upper 1/3 muscles and middle 1/3. Why? Because they are voluntary muscles. First of all, emesis or vomiting is not a voluntary process, it's an involuntary process. It is not in our control. So it's an involuntary process. So if it is becoming an involuntary process, now tell me which part of this esophagus is involved in the case of emesis? The smooth muscles of middle 1/3 and upper 1/3 part. Yes. The answer is what? Answer is what? Middle 1/3 and lower 1/3. Why? उसका आंसर क्या होगा? Because contains smooth muscle. और स्मूथ मसल क्या होता है? अभी बताया क्या होता है? Involuntary, right? Involuntary. So emesis is an involuntary process. Therefore, obviously, involuntary muscle is going to be involved in the process of emesis or vomiting. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yeah. Now और एक चीज बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे. ये तो फूट पाइप हो गया ना, इसका टोटल एक्सटेंशन कितना है? टोटल एक्सटेंशन कितना है? 22 से 25 सेंटीमीटर. कितना होता है?
22 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑलराइट। और ये पाइप के अंदर रहता है क्या? लूमेन ऑफ द इसोफेगस। मतलब इतना तक क्लियर है ना सबको? लूमेन ऑफ इसोफेगस में जाने से पहले मैं पहले ये क्लियर कर लूं Yes, कि sir, ये clear. क्लियर है तो फिर मैं एक क्वेश्चन और एक पूछना चाहता हूँ। ये जो मस्कुलरिस लेयर है इसोफेगस में, इसमें कितना लेयर होगा? टू ही होगा ना, क्योंकि सिर्फ स्टमक को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्री कैनाल का जितना भी ऑर्गन है मस्कुलरिस का 2 ही लेयर होता है। तो ये हम लोग स्टमक तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसका 3 लेयर्स नहीं होगा, ऑब्लिक लेयर नहीं रहेगा, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर क्या इनर सर्कुलर मसल ही रहेगा, राइट? यस ठीक है ना? यस ओके। तो इसके बाद लूमेन ऑफ द इसोफेगस के बारे में बात करेंगे। पहले इसका मैं डायग्राम उठा लूं। और एक कल हम लोग फेरिंग्स पढ़े थे ना, पढ़ लिए थे ना फेरिंग्स? कल फेरिंग्स पढ़े थे? यस सर, टिल टॉन्सिल। तो मुझे Yes, sir. पढ़ा था। तो फेरिंग्स में मैं कितना प्रकार का फेरिंग्स बोला था? 3। क्या क्या? Nasopharynx, Nasopharynx. laryngopharynx and oropharynx. कहाँ पे होगा? Oropharynx, where the mouth opens into the buccal cavity. हाँ, तो Laryngopharynx near the opening of trachea. हाँ, लैरिंगोफेरिंक्स कहाँ पे होगा बताओ? लैरिंगोफेरिंक्स Near the Near opening of trachea. नियर द ओपनिंग ऑफ द ट्रकिया। Trachea. लैरिंग्स जहाँ पे होता है नियर द ओपनिंग ऑफ द ट्रकिया। और तेरा नेजोफेरिंक्स Where internal nerve opens. मतलब नेजल चेम्बर जहाँ पे डाउनवर्ड प्रोग्रेशन कर रहा है वहां पे, राइट? Yes. है ना? तो मैं इसका इसोफेगस से कोई लेन देन नहीं है, मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ इसका आंसर अगर कल ठीक से समझे हैं तो इसका आंसर ठीक से दे। तो ये लिप्स है, अपर लिप, ये क्या है? लोअर लिप। दोनों का बीच जो गैप होता है उसको बोलते हैं क्या? माउथ, राइट? राइट? लिप के तुरंत ये क्या होता है? टीथ, राइट? फिर होता है टंग, राइट? Yes. तो मैं बोल सकता हूं तो ये टीथ और लिप इन दोनों का बीच वाला जो स्पेस है उसका नाम क्या है? वेस्टिब्यूल, याद है? यस। तो मैं अगर बोलता हूं ओरोफेरिंक्स का ऑकरेंस कहां पे होगा? इन द वेस्टिबुलर रीजन। In ना vestibule. ना 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 टीथ के पीछे, टंग से आगे। समझ में आया? यस सर। बिहाइंड टीथ, इन फ्रंट ऑफ टंग। मतलब हम लोग बकल कैविटी के अंदर घुस गए, राइट? है ना? यस सर। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सर इसके once अंदर can you repeat? Yes, sir. Yeah. Please माउथ explain. है, माउथ के पीछे कौन है? माउथ के पीछे कौन है? टीथ। माउथ और टीथ के बीच में क्या है? वेस्टिब्यूल। टीथ के पीछे कौन है? टंग। तो ऑब्वियसली ये जो ओरोफेरिंक्स है ये टीथ में नहीं रहेगा और यहाँ पर भी नहीं रहेगा। कहाँ पे रहेगा? एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टंग। टंग के ऊपर नहीं, वहां पे एक स्पेस है, खाली स्पेस है। ऐसा नहीं कि ओरोफेरिंक्स टंग के ऊपर है। ऊपर है क्या? मैं बनाया हूँ ओरोफेरिंक्स? No. ना, that means it is around the region from where the tongue starts in the buccal cavity. Proper definition ये हो सकता है ना ओरोफेरिंक्स का?
Yes. Yes. ठीक है, नेसोफेरिंक्स पीछे की तरफ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नेसोफेरिंक्स रहेगा, और यहाँ पे अगर ट्रकिया हो जिसके ऊपर लैरिंग्स है, यहाँ पे होगा लैरिंगोफेरिंक्स। यही तो 3 फेरिंग्स रीजन दिखाया था, Yes. भूलना मत कभी भी, ठीक है। Yes. तो मैं बोल रहा था कि इसोफेगस का लूमेन, ऑलराइट, दिस इज हम से देख इसोफेगस का लूमेन ऑफ इसोफेगस, लूमेन ऑफ इसोफेगस, इसको क्या बोलते हैं? लूमेन ऑफ इसोफेगस को क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं रूगे फोल्ड। क्या बोलते हैं? रूगे फोल्ड। इसका काम क्या है? ग्रिपिंग ऑफ फूड। इसका फंक्शन क्या है? ग्रिपिंग ऑफ फूड। कैसे होता है सर, ये दिखाओ तो। ये अगर इसोफेगस हुआ, राइट, तो इस इसोफेगस में यहां पे एक ऐसा, देखते ल्यूमेन बना, दिस इज द ल्यूमेन। तो फूड जब आता है इस ल्यूमेन के अंदर घुसता है, इस ल्यूमेन के अंदर घुसता है। गॉट माय पॉइंट? तो इस ल्यूमेन से नेक्स्ट ल्यूमेन में जाएगा, कंटिन्यूएशन होगा, तो इसके बाद नेक्स्ट, राइट। तो देख पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप कर करके नीचे की तरफ स्टमक में भेज दिया फूड को। Yes. Yes. समझ में आया? तो ग्रिप करके ही भेज रहा है ना ल्यूमेन ऑफ इसोफेगस, राइट? ओके। Yes. तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक क्या होता है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक और सेल्स ऑफ स्टमक। बहुत सारा स्टूडेंट का जिंदगी झंड करके छोड़ दिया है ये। क्यों, मैं बताता हूं, तुझे डायग्राम से पता चल जाएगा कि ये झंड वाला क्यों है। ये इसलिए है कि इसके इतना सारा काम है सेल्स का, उसी में बच्चे एक्चुअली थोड़ा घबरा जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार, न्यूमरस टाइम, ठीक है। तो देख, ये स्टमक, इसका प्लेसमेंट कैसा है? ऑब्लिक है ना, ऑब्लिकली प्लेस्ड, इट इज प्लेस्ड ऑब्लिकली। कैसे करके सर? फिर से देख लो, ये हो गया इसोफेगस, ये हो गया कार्डियक स्फिंक्टर, और देख ये ऑब्लिक प्लेसमेंट है, राइट, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, है ना। आंखें ना रे, चुपचाप बैठा मत रहे। Yes. राइट, तो ये स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट है ये स्टमक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्लिकली प्लेस्ड, राइट। तो इसका कितना रीजन होगा? इसका रीजन एकदम टॉप मोस्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग फंडस। ये कार्डियक स्फिंक्टर है, तो इसका आजू बाजू क्या होगा? कार्डियक रीजन। फिर इसके कार्डियक रीजन के नीचे वाला जो जगह होगा उसको बोलते हैं बॉडी, और ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट, याद है? ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो यहां से तेरा डियोडेनम शुरू होगा ना, है ना। तो फिर इस Yes. रीजन को क्या बोलेंगे? पाइलोरस। तो ये 4 डिवीजन है टोटल स्टमक का, ओके। क्योंकि यहीं से तेरा कौन सा शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन निकलता होगा, बेंट ट्यूब, याद है, डियोडेनम, है ना, राइट, ठीक है। तो इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं,
इसके हिस्टोलॉजी में सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? पहला रहेगा सेरोसा लेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल लेयर होगा फ्लैट सेल से बना हुआ। दूसरा लेयर में ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भैया? पहला रहेगा लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, फिर होगा सर्कुलर लेयर, फिर होगा ऑब्लिक लेयर। देखिए बोला था ना स्टोमक में एक एक्स्ट्रा लेयर आता है। ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल, ये हो गया सर्कुलर, ये हो गया ऑब्लिक। तो 3 लेयर होता है मस्कुलरिस में, राइट। इसके बाद कौन आएगा बोल? सब म्यूकोसा, फिर आ जाएगा तेरा क्या? म्यूकोसा। म्यूकोसा का 3 लेयर, राइट। मस्कुलरिस, लैमिना प्रोपाया एंड एपिथेलियल लेयर, राइट। होगा ना? अबे होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो यही डिफरेंस है। एक्स्ट्रा ऑब्लिक लेयर यहाँ पे मुझे, अगर मैं कट सेक्शन करना चाहता हूँ स्टमक का, तो ये कट सेक्शन में मुझे एक एक्स्ट्रा लेयर मिलेगा जिसको बोलते हैं ऑब्लिक लेयर। ठीक है, क्लियर? इधर तक, इधर तक क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ये हुआ बात। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल्स ऑफ स्टमक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्स ऑफ स्टमक। और सेल्स ऑफ स्टमक पढ़ने के लिए जो हम लोगों का जो ग्लैंडुलर सिस्टम है वो एक ब्रांच्ड ग्लैंड है, सिंपल ट्यूब्यूलर ब्रांच्ड ग्लैंड। देख लेते हैं उसमें कैसे होता है। देखिए एक सिंपल ट्यूब्यूलर ब्रांच ग्लैंड है ये, इसी में बाकी पूरा सेल इसमें रहेगा, सब सेल्स इसी में रहेगा। ठीक है, कैसा कैसा सेल रहेगा वो देख ले। एक एक सेल आराम से देखते हैं, ध्यान से देखना। ये सेल का कैसा है, कॉलमनर सेल्स है या क्यूबॉइडल है? पहले ये बता। ये जो सेल बनाया हूं कॉलमनर है या क्यूबॉइडल? कॉलमनर है, कॉलमनर। Columnar. हाँ, ये कॉलमनर सेल्स है, पहला बात। ये क्या है रे? ये गॉबलेट सेल है। ये गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करता है पता है? म्यूकस। और ये गॉबलेट सेल अंदर है या बाहर है बता तो?
सेल के अंदर है, ब्रांच के अंदर है या ब्रांच के बाहर? बाहर। बाहर. That means this goblet cell is outer, right? Right? ये गॉबलेट सेल अंदर है या बाहर है? ये गॉबलेट सेल अंदर है या बाहर है? अंदर है ना? अंदर। हाँ? अंदर है. देख, ब्रांच के नीचे है, अंदर है. तो ये हो गया इनर. हाँ। ठीक है, मैं गॉबलेट सेल को स्क्वायर अप कर देता हूं. कारण ये जो सेल है ये टॉल कॉलमनर सेल है, राइट? दिस इज अ टॉल कॉलमनर सेल, राइट? जो ब्रांच के अंदर है. ये जो टॉल कॉलमनर सेल इनसाइड द ग्लैंड, उसको हम लोग बोलते हैं चीफ सेल. क्या बोलते हैं? चीफ सेल. ये जो ट्रायंगुलर शेप सेल दिख रहा है इसको बोलते हैं आर्जेंटेफिन सेल. क्या बोलते हैं? आर्जेंटेफिन सेल. इसको भी हम लोग स्क्वायर अप कर देते हैं. ये जो सेल्स है इसको बोलते हैं बेसल सेल्स, या फिर और एक नाम है इसका स्टेम सेल. हुआ. और ये एक बाकी है, ये कौन सा सेल है? इस सेल का नाम है बिग सेल. ठीक है, बिग सेल. इसका जो सिक्रीशन होता है ये अंदर होता है बिग सेल का. तो कौन सा सिक्रीशन करता है वो भी मैं बता दूंगा. इसको बोलते हैं बिग सेल, या फिर और एक नाम है, इसका नाम है ऑक्सिंटिक सेल. ऑक्सिंटिक सेल याद रखना जरूरी है. बिग सेल या फिर ऑक्सिंटिक सेल. तो मुझे बता, सेल्स ऑफ स्टमक कितना बनाया हूं? और एक चीज है यहाँ पे, फ्लावर लाइक सेल जो है ये, इसको क्या बोलते हैं? जी सेल, जो एंडोक्राइन होता है, हार्मोन सिक्रेट करता है. तो बता कितना सेल बनाया हूं? स्क्वायर करके रखा हूं. देख, 7. 1 2 3 4 5 6. 6 है ना? 6 है ना? गॉबलेट सेल तो दो, बाहर अंदर दोनों रह सकता है, तो वो अलग बात है. सेल तो एक ही है, गॉबलेट सेल, राइट? सर कॉलमनर सेल्स. तो कॉलमनर सेल यहाँ पे किया, टॉल कॉलमनर सेल इनसाइड द ग्लैंड, उसको चीफ सेल बोलते हैं. बाहर का चीफ सेल नहीं बोलते हैं. कारण है, नहीं, क्यों नहीं बोलते हैं? ये जो चीफ सेल है ना, जो अंदर का चीफ सेल कॉलमनर सेल है, जो चीफ सेल बोलते हैं, इससे ही एंजाइम सिक्रेट होता है, यहाँ से नहीं होता है. तो इसको सेल कंसीडर नहीं कर सकते हैं विच इज टेकिंग पार्ट फॉर सिक्रीशन. गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस सर. ओके. सर कॉलमनर सेल के प्रोटेक्शन के लिए होता है क्या? कॉलमनर सेल प्रोटेक्शन उतना देगा कि नहीं, इसके बारे में उतना जानकारी नहीं गया, अभी तक नहीं पाया गया है. बट कॉलमनर सेल इज अटैच. अगर कॉलमनर सेल नहीं रहा या फिर क्यूबॉइडल सेल भी नहीं रहा तो वहां से गॉबलेट सेल नहीं आ सकता है. गॉबलेट सेल वहीं पे रहेगा जहां पे कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल रह रहा है, उसी का अंदर से होता है, उसके एक्सटेंशन, डाउनवर्ड प्रोग्रेशन से ही तेरा गॉबलेट सेल बनता है. तो इट इज वेरी इंपेरेटिव that these columnar cells or the cuboidal cells should be having the goblet cell inside. That's why it is present. It should be present. Clear? Yes sir, clear. और म्यूकस का काम क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा एक एक करके. पहले सेल्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया ना भैया? कितना प्रकार का सेल है? अब इसका काम देखेंगे. इंसान काम से जाना जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया कौन सा सेल क्या काम करता है वो देखेंगे. सेल्स ऑफ स्टमक का फंक्शन. ठीक है, ये रब कर दूं? आई डोंट थिंक देयर इज प्रॉब्लम विद इट. तो अभी सेल्स ऑफ स्टमक का जो फंक्शन होता है वो देखेंगे.
फंक्शन। पहला एक सेल का नाम क्या बोला था? गॉबलेट सेल, याद है? अभी बोला था। तो ये गॉबलेट सेल दोनों जगह पे मिल सकता है, राइट? आउटर में भी मुझे गॉबलेट सेल मिला और इनर में भी गॉबलेट सेल मिला, राइट? दोनों जगह पे मिला था, राइट? Yes. ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ व्हाट? म्यूकस। म्यूकस हुआ। सेकंड, जो बिग सेल का नाम बोला था, बिग सेल का और एक नाम क्या बोला था? जो बोला था कि उसको याद रखना है, ऑक्सिंटिक सेल, राइट? Yes. ये ऑक्सिंटिक सेल का नाम क्या है? ये देखिए, ऑक्सिंटिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है? स्टमक के लिए ऑक्सिंटिक सेल अगर ना रहा ना तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट करता है दो चीज। क्या क्या? HCl और एक फैक्टर जिसको नाम है कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl क्या करता है? सर HCl सीक्रेट तो होता है। HCl क्या करता है स्टमक के अंदर? ये ऐसा एक pH देता है जो स्टमक के अंदर कोई भी अगर बैक्टीरिया हो तो उसको, या फिर जर्म्स हो, उसको किल कर सकता है, और स्टमक का जितना भी एंजाइम हो उसको एक्टिवेट करता है। क्या करता है? दो काम। सीडल इफेक्ट टू जर्म्स ऑफ स्टमक, पहला उसको मार देगा, सीडल स्टैटिक नहीं बोला। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ये दो काम प्राइमरीली HCl करता है। कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? और ये HCl का pH कितना है? बता तो। Acidic. 1.2 से 1.8, हाईली एसिडिक। तो कभी सोचा है स्टमक के अंदर इतना एसिडिक कंडीशन है तो स्टमक तो खुद बिगल जाएगा। म्यूकस लेयर से प्रोटेक्शन होता है। सिर्फ म्यूकस से नहीं होता है, ये कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर उसको काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। अकेला म्यूकस से ये काम नहीं होगा। कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, ये बेसिकली इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। पहला काम, प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl, पहला काम, फर्स्ट थिंग। ठीक है। और दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? आई टेल यू, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन विद दिस फंक्शन विद RBC प्रोडक्शन। सिंपल सा बात है। क्या है? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 करता है। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और ये विटामिन B12 का नाम क्या है? सायानोकोबालामिन। सायानोकोबालामिन। ये करता क्या है विटामिन B12? विटामिन B12 बेसिकली एक्टिवेट करता है रेटिकुलोसाइट्स को, और यही रेटिकुलोसाइट से मुझे मिलेगा क्या भैया? RBC। तो किसी का RBC काउंट कम हो रहा है ना, तो सिंपल सा बात है, उसका जो न्यूट्रिशन है उसमें कोबाल्ट कम हो गया या विटामिन B12 कम हो गया, इसीलिए उसका RBC प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। गॉट माय पॉइंट? समझ में आया? इट्स एन एक्टिवेटर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग RBC। क्लियर? Yes sir, clear. ओके। 3 नंबर सेल का बात करते हैं। उसका नाम क्या है? चीफ सेल। ये चीफ सेल क्या है? ये एक चीज सीक्रेट करता है, इट सीक्रेट्स जाइमोजेन। अब ये जाइमोजेन क्या करेगा सर? जाइमोजेन सीक्रेट्स एंजाइम्स। सर कौन सा एंजाइम? और ये एंजाइम क्या फुल्ली फंक्शनल एंजाइम है? ना ना, ये फुली फंक्शनल तभी होगा जब HCl इसके ऊपर काम करेगा। देख इसमें लिखा हूं, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम लिखा हूं ना।
अबे लिखा हूं कि नहीं? यस। हाँ, तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या है? ये सब एंजाइम सब इनएक्टिव एंजाइम है, ये एक्टिवेटेड एंजाइम नहीं है, सब इनएक्टिव है। ये एक्टिव कब होगा? ओनली आफ्टर HCl एक्ट्स ऑन इट। ये एंजाइम कौन कौन सा है ये मैं बोल देता हूँ। 3 एंजाइम प्रिसाइसली है। क्या क्या? पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन एंड माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। नॉर्मली मैं बोला हूं यहाँ पे, ये इसको स्ट्रेस देना, मैं माइल्ड फॉर्म बोला क्योंकि लिपिड का डाइजेशन उतना स्टमक में नहीं होता है, लिपिड का डाइजेशन कहाँ पे होता है? डिओडेनम में। सो माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग। तो ये सब इनएक्टिव एंजाइम है। इसके ऊपर HCl काम करेगा तब ये एक्टिव फॉर्म में जाएगा। पेप्सिनोजेन बन जाएगा पेप्सिन, प्रोरेनिन बन जाएगा रेनिन, माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज बन जाएगा लाइपेज। समझ में आया क्या बोला? इसके ऊपर अगर HCl काम किया, इसके ऊपर भी करेगा, इसके ऊपर भी करेगा और इसके ऊपर भी करेगा, राइट? करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? पेप्सिनोजेन से मिलेगा क्या? पेप्सिन। प्रोरेनिन से मिलेगा मुझे रेनिन और माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज से मुझे मिलेगा क्या? लाइपेज। सो इट्स आफ्टर एक्टिवेशन। गॉट माय पॉइंट? समझ में आया? यस सर। यस। ओके। तो बिग सेल के बाद हम लोग और एक सेल का बात करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगुलर शेप सेल था, उसका नाम क्या बोला था? आर्जेंटेसिन सेल, राइट? बोला था तो हाँ, तो उस आर्जेंटेसिन सेल्स को देखते हैं। सर, what if we हाँ, tell below vitamin absorption of vitamin ये B12? खत्म करने दे फिर तेरा फ्रैक्शनल डाउट। क्या डाउट क्या है बदले बता? सर, क्या है? absorption of B12 के नीचे क्या लिखा था? एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 के नीचे विटामिन B12 का नाम है सायानोकोबालामिन। सायानोकोबालामिन, ठीक है। ओके सर। 4 नंबर सेल का नाम है आर्जेंटेसिन सेल। आर्जेंटेसिन सेल क्या सिक्रीट करता है? बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। ये सिक्रीट करता है सेरोटोनिन। ये एक हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक हार्मोन है और ये सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक मसल। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक मसल। क्योंकि स्टमक में अगर चर्निंग एक्टिविटी नहीं हुआ तो फूड वहां पे थोड़ा थोड़ा, जैसे हम लोग कॉकरोच पड़ते हैं उसमें गीजर्ड होता है, फूड पार्टिकल्स को वो क्या कर देता है? पूरा तोड़ के छोटा छोटा बना देता है। तो ये कुछ भी चीज को छोटा बनाने के लिए कोई भी ऑर्गन को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना पड़ेगा ना, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना पड़ेगा ना, तभी ना कोई फूड पार्टिकल टूटेगा, राइट? तो ये कराता है कौन? आर्जेंटेसिन सेल से जो सेरोटोनिन निकलता है वही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्टमक मसल करता है और इसी के वजह से फूड स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर? यस सर, क्लियर। 5 नंबर सेल जिसका नाम है जी सेल। जी सेल एक एंडोक्राइन सेल है, मतलब ये भी हार्मोन सिक्रेट करेगा, राइट? सिक्रेट्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन सर? कौन सा हार्मोन सर? ये सिक्रेट करता है एक लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन क्या होता है वो भी मैं बोलता हूं, जिसका नाम है गैस्ट्रिन। क्या नाम है भैया? गैस्ट्रिन। ये लोकल हार्मोन है, मतलब लोकल और मतलब बाहर का भी होता है। हाँ होता है। लोकल हार्मोन वो हार्मोन होता है जो जहां पे सिक्रेट हुआ वहीं पे काम करेगा। ट्रॉफिक नहीं है ये। ट्रॉफिक हार्मोन होता है क्या? सिक्रीशन पॉइंट एक होगा और वर्किंग प्लेस अलग जगह पे होगा। गॉट माय पॉइंट और नॉट? ये कहां पे सिक्रेट होता है? स्टमक में। इसका काम भी स्टमक में ही होगा, स्टमक से दूर कहीं पे नहीं जाएगा।
उसको बोलते हैं लोकल हार्मोन। और ट्रॉफिक हार्मोन उसको बोलते हैं जो हार्मोन सिक्रीट होगा एक जगह पे, ट्रेवल करेगा कोई और टारगेट टिश्यू में और वहां पे जाके काम करेगा। क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? क्लियर। Yes, sir. ठीक है। तो ये गैस्ट्रिन करता क्या है? लोकल हार्मोन तो है, करता क्या है? ये करता है कि बाकी सेल से जितना भी सिक्रीशन में दिखाया था, जैसे गॉबलेट से म्यूकस सिक्रेट होता है, ऑक्सिनटिक सेल से HCl या कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट होता है, चीफ सेल से जाइमोजन सिक्रेट होता है, आर्जेंटासिन सेल से सेरोटोनिन सिक्रेट होता है। तो ये सब सिक्रीशन गैस्ट्रिन जब तक सिक्रेट नहीं होगा ना, बाकी सेल कुछ भी सिक्रेट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं? इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ अदर सेल्स, बोल सकते हैं क्या? इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेशन और स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ अदर सेल्स। बाकी सेल से जो भी सिक्रीशन हो रहा है ये गैस्ट्रिन निकलने के बाद ही होगा। क्लियर? यस और सर। 6 नंबर सेल है जिसका नाम है बेसल सेल, एकदम नीचे की तरफ था, जिसका नाम स्टेम सेल भी बोला था, राइट? बेसल सेल या स्टेम सेल, ये एक प्रिकर्सर सेल है। क्या सेल है? दिस इज अ प्रिकर्सर सेल। प्रिकर्सर सेल मतलब सर, मतलब सब सेल का बाप। मतलब ये बेसल सेल या स्टेम सेल से ही बाकी 5 सेल्स आ रहा है। प्रोड्यूसेस अदर सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, प्रोड्यूसेस अदर सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर याद है कैसे बनाया था? ऐसा बनाया था ना, राइट? यस। ऐसा करके बनाया था गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बोला था? कैसा है ये? ब्रांच्ड ग्लैंड, सिंपल ट्यूब्यूलर ब्रांच्ड ग्लैंड, राइट? सिंपल ट्यूब्यूलर ब्रांच्ड, राइट? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिंपल ट्यूबुलर, क्योंकि ब्रांच से ब्रांच नहीं आया है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल ट्यूबुलर ब्रांच्ड ग्लैंड। इज इट क्लियर फॉर यू पीपल रिगार्डिंग द हिस्टोलॉजी एंड द सेल्स ऑफ स्टमक? Yes, sir. यस सर। तो अगर ये क्लियर है, अभी हम लोग बनाएंगे क्या? हम लोग बनाएंगे भैया गैस्ट्रिक जूस। क्या बनाएंगे? गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे। Yes. और ये गैस्ट्रिक जूस जो बनता है ना, ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल के ऊपर होता है, प्रिसाइसली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता है। वेगस नर्व बोल के एक नर्व होता है, वो ही स्टिमुलेट जब करेगा तभी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनेगा। गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करके गैस्ट्रिक जूस बनता है और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। What is the composition of the gastric juice? Right? चलो चलते हैं गैस्ट्रिक जूस के पास। Excuse me, sir. हाँ, Sir, once explain fifth and sixth cell. 5th and 6th सेल वैसा तो नहीं है, कौन सा सेल का बारे में बोल में 6 सेल है, ऐसा करके नहीं है कि इन ऑर्डर रहता है, ठीक है? कौन सा सेल बता, Sir, about सेल का G. नाम बता। जी सेल्स, जी सेल्स का वो एंडोक्राइन सेल्स होता है और वो एक किस्म का लोकल हार्मोन सिक्रीट करता है। लोकल हार्मोन सिक्रीट करने का मतलब ही ये है कि उसका काम सिक्रीशन पॉइंट पे ही होगा। तो मुझे बताइए लोकल हार्मोन जी सेल कहाँ पे सिक्रीट करता है? स्टमक पे, क्योंकि स्टमक ही पर रहे हैं ना, सेल्स ऑफ स्टमक। तो स्टमक में अगर सिक्रीशन हो रहा है तो सिंपल सा बात है, उसका काम हो या फिर वर्किंग प्लेस स्टमक ही होगा। और उस हार्मोन का नाम क्या है? गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन ही है, ये गैस्ट्रिनी हार्मोन वो हार्मोन है जो बाकी सेल से जो भी सिक्रीशन हो रहा था, whatever it was secreting, whether it was mucus, whether it was zymogen or anything, कुछ भी, ये गैस्ट्रिन अगर सिक्रीट नहीं हुआ ना तो बाकी सेल का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? Yes, sir, clear.
sir, and another cell, basal cell. बेसल सेल, बेसल सेल्स या स्टेम सेल। स्टेम सेल को क्या बोलते हैं? कोई भी सेल आता है स्टेम सेल से, वो एक प्रिकर्सर सेल है। प्रिकर्सर सेल का मतलब होता है डैडी ऑफ ऑल सेल्स, ऑलराइट। तो वो कोई भी अदर सेल्स आ रहा है, वेदर इट इज योर जी सेल, वेदर इट इज योर बिग सेल या ऑक्सिंटिक सेल, वेदर इट इज चीफ सेल, वेदर इट इज गॉबलेट, एर्जेंटाइफिन, एनीथिंग यू से, उस सबका बाप एक ही है, बेसल सेल, स्टेम सेल। इसीलिए उसको प्रिकर्सर सेल बोला जाता है। इसी सेल से बाकी का सेल आया है। जैसे तेरा प्रिकर्सर कौन है? तेरा मॉम एंड डैड, राइट? आया ना? Yes, sir. कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे। क्वेश्चन पर Yes, sir. पूछ के चुपचाप बैठा मत रहे। प्रिकर्सर सेल तेरा कौन, कहाँ से आया है? From parents. From parents, from the union of your parents, right? So they are your precursor cells. So what I am Yes. saying that these basal cells are the precursor or the daddy of all the rest of the 5 cells. जैसे गैस्ट्रिन सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है दूसरा सेल को उसका सिक्रीशन करने के लिए, बेसल सेल से बाकी सब सेल उगता है, आता है। क्लियर? Yes, sir, clear. उसके बाद होता है गैस्ट्रिक जूस। जैसे बोला हूं कि जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस, इसका जो स्टिमुलेशन है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सीएनएस, इज अंडर कंट्रोल, मतलब ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इज अंडर कंट्रोल ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब पीएनएस। और इस पीएनएस में एक नर्व है, इस पीएनएस का एक नर्व है जिसको बोलते हैं वेगस नर्व, जो 10th क्रेनियल नर्व है, क्रेनियम से जुड़ा हुआ जो नर्व, क्रेनियल नर्व मतलब ब्रेन से जुड़ा हुआ जो नर्व, ब्रेन के अंदर नहीं बाहर। क्रेनियल नर्व या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिंपल से बताता हूं, जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है कि जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या क्या ऑर्गन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट? तो ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जो जुड़ता है बाहर से, पेरिफेरी से, अंदर से नहीं, बाहर से। अगर इफ आई एम कंसिडरिंग दिस इज द ब्रेन एंड इफ आई एम कंसिडरिंग दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाहर से जो नर्व सिस्टम या नर्व जोड़ता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। It is not inside the brain or the spinal cord, it is actually surrounding the brain and the spinal cord. That's why it is called peripheral nervous system. Okay. Now, next is the gastric juice का composition क्या होगा? Gastric juice का composition क्या है? What is the composition of it? क्या क्या है? क्या क्या है? बता तो क्या क्या सीक्रेट किया था? अभी तक तो बहुत मैं भौंका, तो भौंकने में अगर भौंक सुना होगा तो क्या क्या बोला था, क्या क्या सिक्रीशन हुआ था, क्या क्या सिक्रीशन हुआ था स्टमक में? पेप्सिडोजन, प्रोरेमिन, माइल्ड गैस्ट्रिक प्रोरेमिन क्या होता है भाई? प्रोरेमिन, पेप्सिनोजेन और क्या रहता है? प्रोरेनिन, और क्या बोला था? माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, और क्या होता है? HCl, और क्या होता है? कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, म्यूकस होगा, और
HCl serotonin, है ना, HCl और क्या, सेरोटोनिन और gastrin, गैस्ट्रिन, यही सब रहेगा ना इसमें yes, गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है, हाईली एसिडिक बोला था, 1.2 से लेके 1.8 इसका पीएच होता है। हर दिन कितना वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस निकलता है, एवरी डे वॉल्यूम, एवरी डे अराउंड 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस निकलता है, 2 to 3 लीटर्स पर डे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस का बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, कितना सिक्रीशन है, कि क्या क्या कंपोजिशन है, ये हो गया। इसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे जाऊंगा जो एनसीईआरटी में ठीक से उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ एक पॉइंट मेंशन किया है लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो है कंपाउंड स्टमक जो रूमिनेंट्स में होता है। इसमें देख लेते हैं क्या है। Stop messaging regarding your idiotic things over here. Whoever is this? Compound stomach. और मैं बार बार बोला हूं कि लेक्चर के दौरान ऐसा मैसेज मत कर, गाली अगर नहीं खाना है तो मैसेज मत कर। कंपाउंड स्टमक, कंपाउंड स्टमक कहां पे होता है, ऑकरेंस, ये होता है रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स क्या है, व्हाट यू मीन बाय रूमिनेंट्स? यहाँ पे एक ही जज है, एक ही ज्यूरी है, एक ही सभी है, मैं ही हूँ। मैं क्वेश्चन करूंगा, तुम लोग उत्तर दोगे यहाँ पे। उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है कॉल कर लिए। रूमिनेंट्स किसको बोलते हैं, जवाब दे। What are considered to be ruminants? Who are ruminants? The grazing animals. The grazing animals are called the ruminants. Very good. The grazing animals are called the ruminants. तो उसका स्टमक हम लोगों का स्टमक से थोड़ा अलग ही है, उसका हिसाब किताब थोड़ा अलग। क्यों, वो बताने जा रहा हूं। ग्रेजिंग एनिमल्स, ये रूमिनेंट्स का एक स्टमक होता है। इसका रूमिनेंट्स का जो स्टमक होता है, उस स्टमक को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टमक। इट इज नोन एज कंपाउंड स्टमक। तो ये कंपाउंड स्टमक में होता क्या है, हम लोगों का सर क्या कंपाउंड स्टमक है ना, हम लोगों का कंपाउंड स्टमक नहीं है, हम लोग का सिंपल स्टमक है। सिंपल स्टमक है क्यों, क्योंकि हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या फिर पार्शियल डाइजेशन थोड़ा बहुत कर लेते होंगे, बट कंपाउंड स्टमक में मेन काम है ये सेलुलोज डाइजेशन कर सकता है। दे कैन गो फॉर व्हाट, दे कैन गो फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। लेकिन एक रूमिनेंट का जो स्टमक होता है उसका पार्ट देखना बहुत जरूरी है। ये जो कंपाउंड स्टमक बोला हूं, कंपाउंड स्टमक का पार्ट देखना जरूरी है, कितना पार्ट है। कंपाउंड स्टमक का बेसिकली 4 पार्ट। क्या क्या 4 पार्ट है? पहला पार्ट का नाम है रूमेन, इसका और एक नाम है दिस इज द पाउच ऑफ द स्टमक। दूसरा पार्ट का नाम है रेटिकुलम। इसका एनाटॉमिकल नाम है या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हनीकॉम। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं ओमैटम।
और ओमेसम को बोलते और एक नाम देता है जार्शियम, CHARTIUM, जार्शियम। और जो फोर्थ होता है उसका नाम है एबओमेसन, इसका नाम है रेनेट। तो सर ये जो स्टमक का डिफरेंट पार्ट बताए हैं, ये स्टमक का डिफरेंट जो पार्ट है कंपाउंड स्टमक का, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है और ऐसा क्या चीज है जिसको ये यूनिक बनाता है? ये जो ऊपर वाला जो नाम लिखा हूं ना, रूमेन एंड रेटिकुलम, पाउच एंड हॉनिकम, ये एक ग्रेजिंग एनिमल में नहीं रहता है, एक ग्रेजिंग एनिमल में एक्सेप्शन कैमल्स में, कैमल्स में ये प्रेजेंट नहीं रहता है। और ये दो जगह पे एक किस्म का बैक्टीरिया रहता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है रूमिनोकॉकस। वो सेलुलोज एंजाइम सिक्रीट करता है और इसी के वजह से ग्रेजिंग एनिमल सेलुलोज डाइजेशन कर पाता है। इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? मैं क्या बोला? रूमेन एंड रेटिकुलम, ये दो चीज किसमें एब्सेंट रहेंगे भैया? कैमल्स में। कैमल्स में नहीं है, ये एकदम भी नहीं है। और ये दो चीज क्या सिक्रीट करेगा? बोलो। सेलुलेज। कहां से? कहां से? बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और उस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम क्या है? रूमिनोकॉकस। और इसी के वजह से क्या होता है? सेलुलोज डाइजेशन कर पाते हैं, राइट? हम लोग नहीं, ग्रेजिंग एनिमल। ठीक है, क्लियर इतना तक? तो फिर सर ये ओमेसम क्या करता है? इसका कोई काम वाम धाम है कुछ? हाँ है, हाँ है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ओमेसम या जार्शियम बेसिकली क्या करता है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड वाटर, ये दो काम करता है, बाइकार्बोनेट एंड वाटर। और ये जो एबोमेसम जिसका नाम लिखा हूं मैं रेनेट, इसी को ट्रू स्टोमक बोला जाता है। ट्रू स्टोमक ऑफ इसका ग्रेजिंग एनिमल। क्यों सर इसको ट्रू स्टोमक काहे के लिए बोला जाता है? क्योंकि यही ये चीज है जो सिक्रीट करता है HCl एंजाइम, और एक्टिव डाइजेशन यहीं पे होता है। गॉट माय पॉइंट? क्या करता है ये क्या बोला? क्या सिक्रीट करता है ये? बोलो। HCl सिक्रीट करता है, एक्टिव डाइजेशन यहीं पे होता है। और क्या बोला? पेप्सिन सिक्रीट करता है, रेनिन सिक्रीट करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या ना, यही है ट्रू स्टोमक जहां पे एक्चुअल डाइजेशन टेक्स प्लेस। क्लियर कंपाउंड स्टोमक के बारे में? इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, can you please repeat omasum? ओमेसम को बोलते हैं जार्शियम। देख, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग जानते हैं स्टमक किसी का भी हो, वो क्या होता है? वो हाईली एसिडिक होता है ना, राइट? तो इस एसिड कंटेंट को न्यूट्रल करना पड़ता है। तो कोई तो ऑर्गन होगा जो न्यूट्रल करने के लिए उसमें कोई पानी भर दे। एसिड में पानी देने से वो न्यूट्रल हो जाता है, उसका एसिडिटी कम हो जाता है। या फिर बाइकार्बोनेट अगर उसको एब्जॉर्प्शन करता है तो उसका एसिडिटी कम हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट ये ओमेसम ये दो चीज सिक्रीट करके कंपाउंड स्टमक का जो एसिडिटी है वो कम कर देता है। क्लियर? Yes, sir. Clear. Thank you. तो ये है कि मैं आशा रखूंगा कि कल तुम लोग एक चीज पढ़ के बैठो ठीक से। क्या वो है? स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्टोलॉजी लिख के रखो। क्या पढ़ के बैठना है वो लिख के रखो। हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये पहले पढ़ के रखो। फिर हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर वगैरह वो पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन ये दो चीज का हिस्टोलॉजी पढ़ के रखो। कल जब पढ़ाएंगे तो
समझने में आसानी हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज इतना तक ही रहेगा। मैं नोट्स सेंड करूंगा और बाद तुमको मिल जाएगा, कहीं कहीं पर भी सेंड करूंगा। Okay, that will do it for today. So study the thing that I have told before you enter the class tomorrow. Clear?